Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter of English grammar, that is a noun. This is a very basic concept. It is necessary or mandatory even for second to grade onward. ठीक है, but हम in grade 2 it is only for मतलब definition purpose. But in further classes we also need to know about the types of nouns. Okay, in this class we will study the noun and its type and nouns. What is a noun? First of all we must know the what is a noun. Noun क्या होता है? Nouns are the name of person, place, thing, quality or condition also. ठीक है, for example name कोई भी, it can be any name, रूही, रोहन, राहुल, अजय, विजय, any name. ठीक है, name of a person if it comes in exam तो you have to underline or you have to circle. ठीक है, और if we मतलब कि see the types like first type is a common noun. ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, कॉमन नाउन है. सेकंड क्या है आपकी प्रॉपर नाउन है. थर्ड वन इज द कलेक्टिव नाउन है. फोर्थ वन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फिफ्थ वन क्या है आपका मटेरियल. 1 2 3 4 5 नाउन्स हो गए आपके. ठीक है, बट इन ग्रामर फेस्ट बुक मटेरियल नाउन इज नॉट गिवन, बट हाँ इन अदर बुक्स मटेरियल नाउन इज ऑल्सो गिवन. तो दिस इज द रीजन आई हैव रिटन हियर. एंड कॉमन नाउन. ठीक है, फर्स्टली वी डिस्कस द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन्स आर द नाउन्स दैट डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इन अ जनरली जो होते हैं. लाइक टाइगर है, टाइगर कैन बी एनी टाइगर. ठीक है, टाइगर रॉयल टाइगर भी हो सकता है, बंगाल टाइगर भी हो सकता है. तो टाइगर इफ कम्स, वह टाइगर कम्स तो इट इज अ कॉमन नाउन. इफ नेम इज गिवन तो देन इट दैट टाइम बिकम्स द प्रॉपर नाउन. सेकेंड स्कूल, एनी स्कूल, अक्षर इंटरनेशनल स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल, गुरु नानक स्कूल. ठीक है, इट कैन बी एनी अदर स्कूल, बट इफ स्कूल वर्ड कम तो इट इज अ कॉमन नाउन. बैग है, एनी बैग, ब्लू बैग, वाइट मतलब वाइट बैग, एनी कलर बैग है, एनी ब्रांड इफ इट इज गिवन तो दैट विल द प्रॉपर नाउन. इफ ओनली बैग वर्ड इज देयर तो दैट विल द कॉमन नाउन. Then proper noun, name of a person, place, thing in a specific name of a person, specific name of a people, specific name of an animal or thing. ठीक है, तो लाइक न्यू दिल्ली या कुरुक्षेत्र, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, एनी प्लेस नेम कैन बिकम तो इट इज अ प्रॉपर नाउन. एंड एनी नेम, पर्सन नेम, एनी थिंग नेम तो इट इज अ प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स आर दोज नाउन दैट डिनोट्स द ग्रुप ऑफ अ थिंग, पर्सन और एनिमल. ठीक है, जब इट कम्स इन अ ग्रुप, जैसे स्वार्म ऑफ बीज होता है, bunch of grapes होता है. Likewise, and abstract noun. We come on the abstract noun. Abstract nouns are those nouns that show the feeling, ideas. ठीक है, लाइक जैसे हेटर्ड की फीलिंग होती है, लव की फीलिंग होती है. स्टेट मीन्स क्या होता है, जैसे चाइल्डहुड है, यंग एज है. तो इन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कम्स अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी, मतलब कि दैट कैन नॉट बी सी, वी जस्ट ओनली फील. जो फीलिंग होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते. दिस थिंग ऑल्सो यू कैन से दोज थिंग दैट कैन नॉट बी टच आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Like material noun, material nouns are the nouns that are the things like मतलब कि the thing that is made from another material like silver or gold. This is the material. ठीक है, any things that is in a kitchen or wood है, ठीक है, iron, all this comes under the material noun. Or if we मतलब कि if we categorize all the noun in a broad manner तो we can categorize in two things, countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns में क्या होता है बच्चे, common and collective nouns are come under the countable noun, and the abstract noun and material nouns are comes under the uncountable noun. ठीक है, countable as it is clear from the name, the things that can be counted are the countable noun, the things that cannot be counted are the uncountable noun. अब like abstract noun है, how will you measure कि how much hate do you to others या how much love do you to others, तो कितना ये these things cannot be measured. ठीक है, तो these things will come in the abstract noun. Alright, so let's practice for a few sentences I have written here. Let's do. If you want to do with me, so one thing you can do, you can stop your video and write these words, these sentences in your rough notebook and do, and then check. ठीक है, as I am doing it. If you have any doubt, so you can replay this video. Let's do. First sentence I have written here. He pushed his way through the crowd. I repeat. He pushed his way through the crowd. So we have to find the noun. What is the noun? So he is the pronoun, you know very well.
पुश, पुश क्या है आपका वर्ब की फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वे एंड थ्रू इज द प्रेपोजिशन, द इज द आर्टिकल, तो क्राउड क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। और इन योर एग्जाम यू हैव टू टेल कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज यूज। तो नाउन तो यू हैव आइडेंटिफाइड कि क्राउड व्हाट इज द नाउन, बट क्राउड इज द कलेक्टिव नाउन, क्योंकि भीड़, भीड़ क्राउड का मतलब क्या था, भीड़। भीड़ ये तो नहीं कि एक पर्सन से होगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे तभी क्राउड होगी। तो क्राउड क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आई क्या आपका प्रोनाउन है, ड्रिंक क्या है वर्ब है, मिल्क क्या हो जाएगा आपका, ये मिल्क आपका हो जाएगा, ये आपका इसमें आ जाएगा आपका इसमें मटेरियल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। मिल्क जो पीने की चीजें हैं, लिक्विड चीजें सारी क्या हो जाएंगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट सफर्ड ग्रेट पेन। अब पेशेंट, पेशेंट आपका नाउन होगा, और विच नाउन इज दिस, दिस इज द कॉमन नाउन। पेशेंट में भी वुमेन, पेशेंट में भी गर्ल और बॉय और चाइल्ड, एनी कैन बी पेशेंट, तो पेशेंट क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और पेन, पेन क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें फील कर रहे हो, तो फीलिंग वाला नाउन क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। देन सारा इज नोन फॉर हर काइंडनेस, सारा क्या है प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड इज नोन फॉर काइंडनेस, काइंडनेस इज द quality, so that will come under the abstract noun. Like these utensils are made of brass, so utensils, utensils will also come in the common noun, ठीक है। आर मेड ऑफ अ ब्रास, ब्रास क्या है, कोई मटेरियल है, किसी चीज कोई थिंग है, तो इट विल कम अंडर द मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज द एवरीवन इन द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली, तो अब ऑडियंस है, यहाँ पे ऑडियंस क्या आ जाएगा आपका, ये मैं इसको सर्कल ही कर देती हूँ इनको, ठीक है। ये ऑडियंस क्या आ जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। ऑडियंस ये तो नहीं कि एक ही पर्सन से बनेगी, ऑडियंस में काफी मेंबर होंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे आपके कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद है दिस इज माई रैबिट कॉल्ड सिली, रैबिट क्या है, रैबिट कोई भी हो सकता है, तो इट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। अब कॉल्ड सिली, सिली इज द नेम ऑफ ए रैबिट, तो दिस विल बी द प्रॉपर नाउन। देन अकबर वॉज वेरी वाइज, ठीक है। Any name is given, so you need not to think it is the name of a person or it is a specific name Akbar, so that means it is a proper noun, ठीक है। वॉज आपको पता है वर्ब होती है, वेरी तो एडवर्ब है, वॉइस क्या है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है। डोंट थिंक कि वॉइस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, विजडम वर्ड आपका क्या हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, और एडजेक्टिव क्या होता है वाइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कभी गलती से वाइस को कर दो आपने कोई भी नेम अगर दिया होगा तो अपने नेम को मेंशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक देयर इज नो डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट तो राइट इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू से कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, बाय बाय।